दो भाइयों को एक पुलिस वाला जो कि साबका पुलिस वाला होता है, रिकॉर्ड याफ्ता होता है, उनको बुरे तरीके से गोलियों का निशाना बनाता है, भरे बाजार के अंदर गोलियों का निशाना बनाता है और फिर एक भाई की मौके पे ही डेथ हो जाती है और एक भाई इस टाइम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल है। ये वालदा जिसका एक बाजू ही काट दिया गया। यानी अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के शहर सांगला हिल के अंदर, जहां पे पेश आता है एक नहायत ही दिल खराश वाक़या। दो भाइयों को एक पुलिस वाला जो कि साबका पुलिस वाला होता है, रिकॉर्ड याफ्ता होता है, उनको बुरे तरीके से गोलियों का निशाना बनाता है, भरे बाजार के अंदर गोलियों का निशाना बनाता है और फिर एक भाई की मौके पे ही डेथ हो जाती है और एक भाई इस टाइम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल है। ये वालदा जिसका एक बाजू ही काट दिया गया, यानी कि बाजू ही तोड़ दिया गया। जो बेटे होते हैं, जो औलाद होती है, वो माँ के बाजू होते हैं और वो बाजू जो पूरे घर का जो है वो सर्कल चला रहे थे, पूरे घर को संभाल रहे थे, अपनी बूढ़ी माँ को संभाला हुआ था। लेकिन ये क्या वजह, फल फरोश को एक पुलिस वाले ने इस बेरहमी से मारा। जानते हैं इस माँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सफिया भी सफिया बाजी, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪੋ ਚ ਲੜ ਪਏ ਫਰੂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਰਲ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਛਿੰਦਾ ਜੱਟ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੋਜ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੇਲ ਛਪਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਗਲਫਾਨ। ਸੁਹੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਛਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੱਪਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜੋ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਮਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 16 ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਪਿੰਦੀਆਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਪੁਲਿਸ ਖਰੀਦ ਲੂ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ? ਕਿ ਅੰਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਡੀਪੀਓ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬੇਗਨਾਹ ਮਰੇ ਨੇ, ਮਰਿਆ ਵਾ ਬੇਗਨਾਹ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਵਧਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਬੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ 7 ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 2 ਇੱਕ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਵੱਜਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਰੋਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੋਜ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਜਾਓ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੇਲ ਛਪਾਈ ਆ ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਜੱਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸੀਮ ਮੁੰਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਦੀਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਵਸੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਚੋਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਦਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20-25 ਕੁਰਸੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਚਾਵਾਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀਰ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ੇਬੀ ਨੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮਗਰ ਨੱਟਿਆ, ਬਾਬਾ ਉੱਤਰ ਨਕੱਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ 'ਚ ਇਹਨੇ ਛਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿੰਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। बुरे हों तो आपका भाई था जी। तो कभी आपने उसने आपको बताया नहीं है कि मेरे बाहर मामलात जो हैं वो ख़राब हैं? क्योंकि देखिए आपकी अम्मी भी इस उम्र में उनकी रखवाली करती थी, तो कुछ तो मामलात गड़बड़ होंगे ना? कोई मामलात ही नहीं, मुझे सारा पता है। मेरे साथ ही सोता, खाता, पीता, फिरता, कारोबार। लेकिन आपके भाइयों पे ये भी इल्ज़ाम है कि आपके भाई जो हैं वो मनशियात बेचते थे फल की आड़ में। नहीं,
आपके वालिद साहब भी अभी इस टाइम जेल में है और आपके भाई भी है। इसी की वजह से नहीं मेरा तफ्तीश माँ जी एक मिनट, मैं तन पूछती हूँ। तफ्तीश कर सकते हैं पूरे शहर में। नहीं, तफ्तीश करना मेरा काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम है आपकी आवाज आला हुक्मरान तक पहुंचाना, आला इदारों तक पहुंचाना, ठीक है ना। तफ्तीश जो है वो इदारे करेंगे, वो पुलिस करेगी। कोई भी इदारा हमारी तफ्तीश कर सकता है। हम जुर्म पर्चे भी है ना, जी पर्चे भी है ना आपके भाई पे। जी हर साल में लिस्ट निकलती है जी, आपकी लिस्ट आ गई, डेरी से ले जाते हैं, पर्चा दे देते हैं। ओमान कुरान से हमने हल्फियन कोई भी काम किया हो, अल्लाह पाक की पकड़ में हम आए, ठीक है। मरियम नवाज से हमारी अपील है, हमें इंसाफ दिया जाए। उस्मान जफ़र सेल चट्ठा साहब से हमारी अपील है। CCD अब कहाँ है? CCD करे इंसाफ, CCD तफ्तीश करे, गलत होंगे तो ना करे, जब सही है तो फिर हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ये जो है सुहेल कांस्टेबल, ये आपके भाई की रेडी पर फल लेने आता था और पैसे नहीं देता था। नहीं देता था, पूरे बाजार को पता, नहीं पैसे देता था। उस दिन बारिश थी, काम नहीं था, उसने पैसे मांगे, उसने कहा यार आज काम नहीं है, बारिश है, सारा दिन बारिश हुई है। पैसे मांगे? नहीं, फ्रूट ही मांग रहा था। अच्छा, फल मांगा और आपके भाई ने नहीं दिया? नहीं दिया। इसी अच्छा, ना देने की वजह से जो है उसने गोलियां चला दी। जी ऐसे वैसा हो गया। वो किसी भी दुकान से, किसी भी रेहड़ी से ऐसे ही गाड़ी रोकनी है, गाने चल रहे हैं, गाड़ी में ऊंची आवाज में सारी रात गाने चल रहे, कलशने रखी, गन्ने रखी हैं, घूम रहे, लाइटें लगी हुई है, कानून की लाइटें लगी हुई है, ना कोई उसे रोक रहा है ना कोई टोक रहा है। जिसको अच्छा, हूटर लगा होता था? जी रूटर लगा होता है, जिसको मर्जी पकड़ते हैं, मारते हैं। तो यहाँ पे सांगला हिल के अंदर पुलिस भी है, इदारे भी हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको पकड़ सकता अगर वो रातों को दिन को दंदनाते फिरते हैं? जी दंदनाते ये बात कर रहे हो? वो 302 का मुलजिम है, कुर्सी पे बैठा था। कौन? मलक से जी, आप मेरा कहते चाचा पकड़े लेके आया। 302 का दो मर्डर किए हैं और कुर्सी पे बैठा हुआ है। SHO के पास? जी SHO सदर के पास बैठा है, जिसका मेरे केस के साथ कोई तल्लुक। क्या नाम है SHO साहब का? वो उसका नाम है कामरान। तो उन्होंने आपके मुलजिम जो कि 302 का दोहरे कत्ल का मुलजिम है, वो SHO साहब के पास कुर्सी पे बैठा हुआ है, जी उसके साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं जो मुलजमान के साथ अक्सर पुलिस करती है? जी नहीं। ठीक ठीक तो ठीक। हमारा सिटी का SHO वो हमारे साथ ताउन कर रहा है, ठीक है। CCD नहीं हमारे साथ ताउन कर रही। CCD थाना बना हुआ है सांगला हिल में, उसने हमसे पूछा तक नहीं क्या हुआ क्या। आप CCD को कहे ना, आप जो भी आपकी अपील है आप उनसे करें। सुमान जफर सेल चट्ठा साहब से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। DPO साहब ने हमको बहुत तसल्ली दी है। हम उनके पास कल गए थे, उन्होंने हमारी बहुत तसल्ली के साथ सही बात की है। DPO साहब से आप तसल्ली बख्श हैं कि वो आपको इंसाफ देंगे? मुझे वो DPO फराज साहब, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, जिंदगी दे। हम पहली दफ़ा घर से बाहर निकले, उनके पास गए। आप बहन हैं? मैं बहन हूँ, मैं जहाँ ज़ेब की बहन हूँ, अबू ज़र की बहन हूँ मैं। तो उनके पास गए, उन्होंने बड़ी तसल्ली से हमारी बात सुनी, हमको तसल्ली भी दी कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि इधर कुछ ना कुछ उनके पास ना जो है जालिम लोग, वो जो है कातिल मेरे भाइयों के, उनके पास पैसा बहुत है, लाखों के हिसाब से नहीं, उनके पास करोड़ों के पास, छिंदे जट के पास पैसा है और स्पोर्ट्स से हेल किया है, पैसा उसका है। तो वो हमको पता चलने में आ रहा, जारी बात है शहर में रहते हैं, कोई ना कोई आके हमको बताता है कि तुहानू इंसाफ नहीं जे मिलना, उन्होंने पैसे लै दे के छड़ छड़ैया कर लेना। लेकिन मुझे DPO पर बहुत यकीन है, जैसे उन्होंने हमें तसल्ली दी थी कि हमको इंसाफ मिलेगा। हमारी अपील है हमारा के CCD को दे जी। CCD माँ जी, बेटे कितने ने था? 4 बेटे हैं। 4 बेटे? हाँ जी, एक फौत हो गया, एक हॉस्पिटल च पिया, एक जेल च पिया, एक बेटा है। हाँ जी, हाँ जी। ये ना CCD को हमारा केस मेरे यही है, मेरी नवाज, मैनू ना नहीं ਹੁੰਦਾ LCD मैं कहनी ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। CCD
जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये बूढ़ी वालदा जिसका सहारा छीन लिया गया, जो इस घर का कफ़ील था उसको छीन लिया गया, किस तरह से बेरहमी से मारा गया। वजह महज सिर्फ ये थी कि एक पुलिस वाला जो कि साबका कांस्टेबल था वो बदमाशी करता है, आके इनके बेटों की रेडी पर आता है और बिना पैसे दिए भत्ते की सूरत में जो है वो इनसे फल लेके जाता है। लेकिन 2 दिन पहले जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो वो उस बच्चे की सेल शायद नहीं हुई थी, तो उसने कहा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरी सेल नहीं हुई है, तो तुम पैसे दे के जाओ। और फल ना देने की सूरत में उसने इनके बेटों को किस बेरहमी से मारा है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इनकी डिमांड है कि ये जो केस है वो सीसीडी को दिया जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। और यहाँ पे मैं डीपीओ साहब को भी कहना चाहूँगी कि डीपीओ साहब, इनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ये आप पे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरिएगा ताकि इनको इंसाफ मिले और इनको यकीन हो कि हाँ, हमें भी इंसाफ मिला है, इनके बेटों को इंसाफ मिला है। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।